هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالی is here. امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ اليوسف لیکچر نمبر 1 آیت نمبر 1 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن سے. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی. سٹارٹ اس کا حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. سٹارٹ میں ہمیشہ کی طرح جیسے ہم اس کا شان نزول پڑھتے ہیں، مقام نزول پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہاں بھی میں آپ کو یہی چیزیں بتاؤں گی. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور ان کے نتائج کے اور کوئی بھی چیپٹر یا کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ سوائے اس صورت کے اور کہیں بیان نہیں کیا گیا، جبکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات مقامات مختلف انداز سے مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، بارہا ذکر کیے گئے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے لے کر آخر تک تمام وہ کمال ایک ہی جگہ بیان فرما دیا گیا ہے. اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھ دیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 26 ٹائم آیا ہے، 26 مرتبہ ذکر کیا گیا، جس میں 24 مرتبہ صرف اسی صورت یعنی سورہ یوسف میں، اور ایک جگہ سورہ انعام میں، ایک جگہ سورہ مومن میں ذکر کیا گیا. یہ صورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، جبکہ کفار قریش یہ مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں معاذ اللہ. تو اگر حساب کے ترتیب کے حساب کی بات کی جائے تو قرآن کریم کی یہ 12ویں صورت ہے، لیکن اگر نزول کا شمار کیا جائے تو یہ 77 جو نزول کا اعتبار تھا نا اس لحاظ سے یہ 77 نمبر پہ نازل ہوئی تھی. اس صورت میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں اور 1808 کلمات ہیں. اور اس صورت کی شان کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے گفتگو کی اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. اس پر یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ اس نبوت کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ جھوٹا بتانے کے لیے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس طرح کا کوشچن کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آنسر نہیں معلوم ہوگا. معذرت، ان کی سوچ اتنی چھوٹی تھی کہ ان کو یہ آنسر نہیں معلوم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو علم بذریعہ وحی دیا، خود ان کو علم دیا، تو کیا ان کو ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو تمام چیزوں کے بارے میں علم دیا تھا، اور ایسی چیزوں کے بارے میں علم دیا تھا جس کے بارے میں باقی لوگ نہیں جانتے تھے. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ نا ان سے یہ سوال کریں کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے. اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ ہرگز نہیں بتا سکیں گے، اگر تو یہ نبی ہوئے تو ان کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں سوالات کیے. چونکہ قریش مکہ اس قصہ سے ناواقف تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں سنا تھا، اس لیے کفار مکہ کو توقع تھی کہ آپ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر نہیں دے سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرما کر پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کی زبان مبارک سے سنوا دیا، جس میں نہ صرف اس بات کا جواب
ہے کہ बनी इसराइल शाम से मुंतकिल होकर मिस्र किस तरह पहुंचे, वहां आबाद किस तरह से हुए, बल्कि सूरत अजीबो गरीब बसीरतों और इबरतों पर भी मुश्तमिल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व वाक़ियात से बहुत मुशाबहत रखते हैं। मसलन जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इनके भाइयों ने हसद किया और तरह-तरह से इनको तकलीफें पहुँचाई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र इस्तकामत की बरकत से इज्जत और गलबा नसीब फरमाया, और जब आपको गलबा शौकत नसीब हुआ तो भाइयों से कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन कहकर दरगुजर फरमाया और इनको इनाम इकराम से सरफराज फरमाया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का से बहुत सारी तकालीफ इज़ाएँ पहुँची, लेकिन हस्बे इरशाद बारी ताला आपने सब्र व इस्तिकामत से काम लिया। बल्कि जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ, उस टाइम को याद कीजिए, जब मक्का मुकरमा फ़तह हुआ था, तो इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से इंतकाम नहीं लिया। ना इन्हें मलामत की, ना उन्हें टीज़ किया, ना उनसे गुज़श्ता कोई शिकवा किया, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह ये फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, मैंने तुम्हारा कसूर मुआफ़ किया, अल्लाह भी तुम्हारा कसूर माफ़ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ सलूक किया, एहसान किया, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ हुस्ने सलूक किया और उन पर एहसान फरमाया। इसी तरह इसके कुछ मकासद भी हैं इस सूरत के, सूरह यूसुफ सुनाने के, सहाबा कराम को सुनाने के और बाकी लोगों को सुनाने के कुछ मकासद हैं। इसके अहम मकासद क्या हैं? जिस तरह कुरान करीम की किताबुल्लाह होने की दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत है, और इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों की इज़ाओं पर सब्र किया, आपने भी कुरैश मक्का की इज़ा रसानियों पे सब्र किया और फिर सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे और नतीजे का इंतज़ार किया। और ये भी यही इस चीज़ में, इस सूरत में बताया जाता है कि आप सब्र कीजिए, अगर कोई मुश्किल पेश आती है, आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला पे आप भरोसा रखिए, तवक्कुल कीजिए। जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। अल्लाह आपके लिए एक ऐसा टाइम लेके आएगा कि अल्लाह आपके नाम को बुलंद रखेगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को बुलंद किया गया, और अल्लाह ताला ने एक टाइम ये था कि उनको ज़मीन से उनका नाम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की माज़अल्लाह कोशिश की जा रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए, उनको ज़हर दे दिया जाए। यहूदी क्या करते थे कि बारहा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर देने की कोशिश की, बारहा उन्होंने जाके पत्थर का टुकड़ा आपके सर पे गिरा दिया जाए, माअज़ल्लाह। इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब किस्सा हम बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से भाइयों ने एक प्लान्ड तरीके से उन्होंने कहा कि बड़ी प्लानिंग की कि हम उनको कुएँ में डाल देंगे, हम उनके साथ ये सलूक करेंगे ताकि बाबा की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ हम मबज़ूल कर सकें। लेकिन अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है, जिसके नाम को बुलंद करना होता है, वो क़यामत तक के लिए बुलंद होता है, और फिर उम्मत मुहम्मदिया के लोग भी बैठ के उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे मैं और आप आज इस किस्से को डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त अता फ़रमा दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कहाँ इतनी सदियाँ गुज़र चुकी हैं, कहाँ उस टाइम में अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त अता फ़रमाई, पैगम्बरी अता फ़रमाई, बादशाहत अता फ़रमाई, दौलत अता फ़रमाई, हुस्न अता फ़रमाया, क्या कुछ नहीं अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया, और इज़्ज़त इतनी अता फ़रमा दी, इतनी सदियाँ गुज़रने के बावजूद हम लोग आज बैठ के उनके किस्से को डिस्कस कर रहे हैं। इज़्ज़त ये होती है। तो एक टाइम पे अगर कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको टीज़ कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके नाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो बस आप सूरह यूसुफ के नतीजे को देख लीजिए, इनके मकासद को देख लीजिए। सूरह यूसुफ की तरफ आप नज़र दौड़ाएँगे तो ये आपके लिए बेहतरीन, बेस्ट मोटिवेशन है ये आपके लिए। ये आपको बताएगी कि देखिए, अल्लाह ने जो चीज़ें आपको दे दी हैं, चाहे वो आपकी हाइट है, चाहे वो आपका कलर है, चाहे वो आपकी कह लें कोई डिग्री है, कुछ भी जो अल्लाह ने आपको दे दिया वो बेहतरीन है। अल्लाह उसी के ज़रिए से आपको कामयाबियों से नवाज़ेगा। जो आपके पास है, जो अल्लाह ने आपको दे दिया है, वो बेहतरीन है। और उसी पे जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपको एक मुकम्मल इंसान बना दिया है, और अल्लाह ने आपको इल्म से नवाज़ दिया है, अल्लाह ने आपको अपनी बेहतरीन किताब का नॉलेज दे दिया है, अल्लाह ने इसको पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको
जो बैठे हुए होंगे टीवी पे बैठे हुए होंगे, ड्रामास देख रहे होंगे, मूवीज देख रहे होंगे, नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जिनमें वो बिजी होंगे, बहुत सारे उनके हॉबीज होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपको सिलेक्ट कर लिए किसके लिए? कुरान के लिए। अल्लाह ने इसके लिए आपको सिलेक्ट किया, आपको चुन लिया। यू आर सिलेक्टेड पर्सन। अल्लाह ने आपको चुन लिया और कहा है कि आप इस किताब को देखिए, इसके नॉलेज को समझिए, क्योंकि आप बेहतरीन लोगों में शुमार हो रहे हैं। तो अल्लाह ने बेहतरीन लोगों में आपको शुमार कर दिया है और बता दिया है कि इसमें बेहतरीन लोग कौन-कौन से हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन लोगों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत सारे बेहतरीन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन यहाँ पे हम किस्सा यूसुफ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन है, जो कि बताती है कि आप सब्र कीजिए। जब आप सब्र करेंगे और नतीजे का इंतज़ार करेंगे, तो अल्लाह आपको बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। इसके साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की अस्मत, इफ़्फ़त, तहारत, पाकीज़गी, नज़ाकत को भी बयान किया गया है कि किस तरह से अल्लाह ने उनको इतनी बेहतरीन जवानी अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई, शबाब अता फरमाया, लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की, अपनी आबरू की हिफ़ाज़त की, उन्होंने अपनी हया की हिफ़ाज़त की और महफ़ूज़ रहे, औरतों के मक्कर से महफ़ूज़ रहे, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्मत, इफ़्फ़त, तहारत, नज़ाकत ऐसी होती है कि किसी हाल में भी नफ्स और शैतान का इन पर बस नहीं चलता। इस किस्सा में कुरैश मक्का को भी जतलाया गया और इस तरह की पेशन गोई फरमा दी गई कि आज तुम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे हो, वही कुछ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था। मगर जिस तरह बरादराने यूसुफ जो थे वो अपनी तदबीर में कामयाब नहीं हुए थे, इसी तरह इन्हें अपने भाई के आगे झुकना पड़ा था, जिसको इन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ कुएँ में डाल दिया था। इसी तरह तुम्हारी जितनी भी चालें हैं, जितनी प्लानिंग्स हैं, वो भी सारी की सारी अल्लाह के मुकाबले में नाकाम रहेंगी। एक दिन तुम्हें भी बिरादराने यूसुफ की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमो करम तलब करना पड़ेगा, जिन्हें आज आप ईज़ा पहुँचा रहे हैं, तकलीफ पहुँचा रहे हैं। चनाचे हमने देखा, रहती दुनिया ने देखा कि फ़तह मक्का का दिन इस पेशन गोई पर गवाह है। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते हैं। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर बने, मिल्लत इब्राहीमी की दावत और तबलीग की खिदमत अंजाम दी। इनके इस किस्से में बहुत सारी इबरतें, बसीरतें भी हैं, जो कि इंशाअल्लाह जैसे-जैसे हम ये सूरत पढ़ते रहेंगे, जैसे-जैसे इसकी डिफरेंट आयात की हम तफसीर पढ़ते रहेंगे, वो आपके साथ शेयर की जाती रहेगी इंशाअल्लाह। इस सूरत की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत, तिलका ये आयातुल किताबी, ये आयात यानी कि निशानियां हैं, मुबीन, वाज़िया, रोशन, खुली हुई। और इसमें आप देखेंगे किस तरह से खुली हुई निशानियों के साथ आपको मोटिवेट किया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। कुरान सबसे बड़ा मोटिवेटर है। कुरान सबसे बड़ा मोटिवेटर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है इसमें, कि ये अल्लाह का कलाम है ना, बेहतरीन किताब है ये, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाज़िल किया कुरान को अरबियन, अरबी में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो, ताकि तुम इसको समझ सको। अरबी में देखिए, हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारी यूज़र लैंग्वेज में ना हो। मैं आपसे बात करूँ इंग्लिश में, मैं सारी इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँ, मैं कोई भी इसमें ट्रांसलेशन उर्दू में ना करूँ, आपकी मेरी यूज़र लैंग्वेज हमारी कंट्री में जो बोली जाती है उर्दू है, ठीक है? अगर मैं उर्दू नहीं बोलूँगी, मैं इंग्लिश बोलती रहूँगी, तो क्या होगा? आप में से बहुत सारे जो पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अंडर मैट्रिक के हैं, जो मैट्रिक हैं, उनको समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रही हैं, कैसे कह रही हैं, ये तो सिर्फ़ अपने नॉलेज को झाड़ी जा रही हैं इस तरह से। लेकिन क्या होगा? समझ नहीं आएगी आपको। यूज़र जब तक हम, कोई भी यूज़र है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लेवल तक उतर के बात नहीं करेंगे, उसकी ज़ुबान में बात नहीं करेंगे, उसको हमारी बात की समझ नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम ऐसे होता है कि हम लोग किसी से मिलते हैं ना, अगर वो पंजाबी में बोल रहा हो, अगर हमें पंजाबी आती है तो हमने पंजाबी की ज़ुबान में उतरना है, फिर उससे बात करनी है, फिर उसको समझाना है, तो उसको तब समझ आएगी। ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को किस ज़ुबान में उतारा? अरबी ज़ुबान में। अरबों में इसको नाज़िल करना था, तो अरबों में वो पढ़े लिखे हों या ना लिखे हों, उनकी यूज़र लैंग्वेज थी। ठीक है? और वैसे भी सबसे बेहतरीन
ज़ुबान है, जन्नत में यही ज़ुबान बोली जाएगी और अरबी ज़ुबान बेहतरीन ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। तो अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया ताकि इसको समझ सकें, जिन लोगों के दरमियान उसको उतारा जा रहा है। इसके बाद ये ट्रांसलेशन हम तक पहुँची है उर्दू में, फिर बहुत सारी ज़ुबानों में इसकी ट्रांसलेशन हुई, फिर हम इसको समझने के काबिल हुए कि इसको जो हम जैसे अजमी हैं, हम अजमी हैं ना, हम अरबी नहीं हैं, तो अजमी में भी इसको समझने के काबिल हुए जब इसकी ट्रांसलेशन हुई डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में, तो फिर हम इसको पढ़ने के काबिल हुए। तो अगर कोई हमें अपनी बात समझाना चाहता है, हम कहीं भी कुछ बात समझना चाहते हैं, इवन अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हम कहीं भी हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम हमारी जो यूज़र लैंग्वेज है उर्दू, इवन हम यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, तो वो हमें जो जब लेक्चर डिलीवर करते हैं ना, तो वो हमारी यूज़र लैंग्वेज में उतर के हमें समझाते हैं। मुझे ऐसा लगता होता था कि जब यूनिवर्सिटी जाएँगे तो वो सारी बात इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ये वो इस तरह से ज़हन में आता होता था कि यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश ही बोली जाती होगी, ऐसा नहीं होता। आप सब लोग भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा कि हम जिस कंट्री में या जिस जगह से या जिस लैंग्वेज से हम बिलॉन्ग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी होती है, वो वहाँ पे बोली जाती है, तो ताकि समझ आ सके। अब अगर हमारे प्रोफ़ेसर्स या फिर हमारे मेंटर जो हैं, वो इंग्लिश बोलते रहें या कोई और छोड़ें, पर्शियन वो बोलना शुरू कर दें, कुछ भी बोलना शुरू कर दें, हमें उस चीज़ की समझ नहीं आएगी, ठीक है? अगर किसी ने फ़ॉरेन कंट्री में जाना हो पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, उसने पहले उस ज़ुबान को सीखना होता है, ज़ुबान को सीखने के बाद, उनकी लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर वो वहाँ जाके रह सकता है, वहाँ जाके स्टैंड कर सकता है। नहीं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से हम किसी को बात तभी समझा सकते हैं जब हम उसी की ज़ुबान में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब को अरबी ज़ुबान में नाज़िल किया ताकि उन अरबी लोगों को समझ आ सके। उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में नाज़िल कर दिया और उसको बता दिया कि ये एक बेहतरीन ज़ुबानों में से ज़ुबान है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है और इसको बेहतरीन ज़ुबान में ही अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। और इससे पहले जो सूरत थी, सूरह यूनुस और सूरह हूद की इब्तिदा भी हरूफ मुक़त्तआत से हुई थी। हरूफ मुक़त्तआत के मुतल्लिक मुफ़स्सल जो डिटेल है वो सूरह बकरा के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दी थी। आप जो प्रीवियस लेक्चर उसको भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि ये इनका मतलब होता है मुक़त्तआत मीन्स कटे हुए हरूफ, इनको अलग-अलग पढ़ा जाता है। इनकी प्रोनंसिएशन ऐसे होती है कि ये जो इसके ऊपर मद है ना, मद को 3 अलिफ के मिक़दार जितना लंबा खींच के पढ़ते हैं। अलिफ, लैम, रा। खड़ी ज़बर एक अलिफ की मिक़दार जितना लंबा होगी, इसको खड़ी भी बोलते हैं, खड़ी ज़बर भी बोलते हैं, मीन्स कि ये ज़बर है, लेकिन ये सीधी है, खड़ी है, इसलिए इसको खड़ी ज़बर बोलते हैं, ठीक है? हरूफ़ मुक़त्तआत क्योंकि इनको सेपरेट करके पढ़ा जाता है, अलग-अलग पढ़ा जाता है, सो इनको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इनकी प्रोनंसिएशन ऐसे होगी, अलिफ, लैम, रा। रा यहाँ थोड़ा पुरु होगा क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, अगर ज़ेर होती, तो देन इसको बारीक पढ़ना था हमने, ठीक है? तो ये कटे हुए हरूफ हैं, इनको सेपरेट पढ़ा जाता है, अलग-अलग करके पढ़ा जाता है और इनकी ट्रांसलेशन या इनके मीनिंग्स जो हैं, बाज़ मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला को ही इनके मीनिंग्स मालूम हैं, लेकिन बाज़ के अकॉर्डिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनके मीनिंग्स मालूम थे, लेकिन उन्होंने उम्मत को नहीं बताए, बाज़ वजूहात की वजह से। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो इन हरूफ के अंदर जो हक़ाइक़ पोशीदा हैं, इनका वाक़ई इल्म अल्लाह ताला को है या अल्लाह ताला इसके बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला बताने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था, बाज़ उलमा किराम के अकॉर्डिंग और अल्लाह ताला के दरमियान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये एक राज़ है, जिसकी हकीकी मुराद कोई तीसरा बंदा नहीं जानता। ना इसके लिए मुनासिब है कि इसकी तहकीक के पीछे हम लोग जाएँ। तो इन पर इसी तरह ईमान रखना चाहिए। इसके बाद सूरत की इब्तिदा कुरान करीम की हक़ानियत, सदाकत और अल्लाह ताला की तरफ से होने से दी गई है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया है। ये सूरत यूसुफ कुरान करीम की सूरत है और इसमें खुली वाज़िह रोशन दलाइल हैं और ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें बहुत सारे अहकामात हैं और ये नहायत रोशन और साफ़ है। अरबी ज़ुबान जो कि तमाम ज़ुबानों से ज़्यादा फ़सीह है, वसीह है, बेहतरीन ज़ुबान है, नज़्म व ज़ब्त इसमें बहुत ज़्यादा है और नुज़ूल कुरान के लिए इसको अल्लाह ने मुंतख़ब कर लिया है। जब खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, तो ज़ाहिर है कि दुनिया में इसके लिए अव्वलीन मुख़ातिब अरब होंगे। सबसे पहले अल्लाह ने किनको मुख़ातिब किया? अरबियों को, अरब जो थे उनको मुख़ातिब किया। फिर अरब के ज़रिए से चारों तरफ रोशनी फैलेगी। इसी तरह लअल्लकुम ताक़िलून इशारा फरमाया गया कि ए अहले अरब तुम्हें ये बातें किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं सुनाई जा रही।
تمہاری اپنی زبان، تمہاری مادری زبان میں آپ کو بتا رہی ہیں، جو آپ کی مدر لینگویج ہے، اس میں ہی آپ کو یہ زبان کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، اور تمہاری زبان میں اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہو، اول اس کے علوم و معارف کا مزہ چکھ لو، پھر دوسری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں کس طرح سے روشن اور واضح دلائل موجود ہیں۔ انڈرسٹوڈ؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، ہم نے یہ جو قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے، اس سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر تھے۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اب اس میں سب سے پہلے ایک ڈریم کی بات کی جائے گی، ایک خواب کی بات کی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خواب جھوٹے ہوتے ہیں، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن سارے خواب بھی سچے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں نے ایک سیشن کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے بتایا تھا آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اس قال کہا یوسف ابھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، لی یا چھوٹی یا جو یہاں پہ یوز کی جا رہی ہے وہ میرے لیے یوز کی جاتی ہوتی ہے، اپنی جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کاف یوز کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے، لکا آپ کا، الی کا آپ کی طرف۔ ٹھیک ہے، جب دیکھیں اوحینا، جب ہم نے نا کی بات کی تھی تو ہم نے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے زیادہ لوگوں کے لیے صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، الی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جب کاف لگا دیں گے اٹ مینس کہ آپ کی بات کی جا رہی ہے، تمہاری بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ رأیتہم میں نے دیکھا ہے انہیں، والقمر والشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین کہ وہ لی مجھے، چھوٹی یا یوز کی گئی ہے، وہ میرے لیے یوز کی گئی کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ساجدین وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور انہوں نے کہا اے بیٹا اپنے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، بس وہ تمہارے لیے خاص تدبیر کریں گے، بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تو اب ان ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا عربی زبان میں نازل ہونا بیان فرمایا گیا تھا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو قرآن کی صورت میں آپ پر نازل ہوتی ہیں، ہم نے ایک نہایت اچھا بیان، نہایت حسین طرز میں آپ کو سنایا ہے، جس سے آپ اپنی قوم کو بھی سمجھا سکتے ہیں، جس سے آپ بھی پہلے بے خبر تھے اور آپ کی قوم بھی۔ گویا یہ واقعہ کتاب تاریخ مینس کے لائک انجیل جو ہے وہ اس میں پہلے سے مذکور تھا، مگر محض ایک افسانے کی صورت میں تھا، ایک شارٹ سمری کہہ سکتے ہیں، سمری کی صورت میں انجیل میں پہلے یہ قصہ موجود تھا، مگر وہ ایک افسانے کی یا سمری کی صورت میں تھا۔ پھر قرآن کریم نے اس کے ضروری اور مفید اجزاء کو ایک اچھی سی ترتیب دی اور بلیغ مفسر سے اس کو انداز میں بیان کیا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی ترتیب کے ساتھ، ہر چیز کو، ایون ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اس کے ہر علوم کو، اور اس کے جتنے بھی چیپٹرز تھے سب کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا۔ قرآن جو ہے اس نے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے، سب سے اچھا قصہ ہے، اس کو بڑے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے جس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو جہاں مل کر اپنی ساری پلاننگز بھی اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے جب کسی چیز کو کرنے کا ٹھان لیا ہے تو اس کو کوئی چیز، تقدیر بھی نہیں روک سکتی۔ تو تقدیر اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے، لیکن جب دعا کی جاتی ہے یا اللہ کے پروٹیکشن میں آیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دعاؤں سے تقدیر بھی جو بدل جاتی ہے نا، تو اللہ نے پھر بہت ساری چیزوں کو بدل ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا اور فیکون ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قصہ کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن کے زمانہ میں خواب دیکھا، جس کو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند، سورج میرے آگے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور
हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने चहेते बेटे का ये ख्वाब सुना तो परेशान हुए, सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि आपने ये अपना ख्वाब किसी के सामने नहीं दोहराना। ऐसा ना हो इसको सुनकर तुम्हारे भाई बुराई के साथ पेश आएँ, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा होता है, वसवसा अंदाज़ी करके भाइयों को तुम्हारे खिलाफ उकसा देगा। अब देखिए जो अच्छे ख्वाब होते हैं ना, अच्छे ख्वाब हमेशा किसी आलिम को सुनाएँ, किसी ख्वाब की ताबीर जो जानने वाला ना उसको सुनाएँ। कोई ऐसा बंदा जो कि आपके अगेंस्ट है, आपका दुश्मन है, उसको कभी भी अच्छा या बुरा ख्वाब जो भी आएगा उसको नहीं आपने सुनाना। ठीक है? तो ये चीज़ उन्होंने देखी, अब वो उनके वेल विशर थे उनके फादर, उनको पता था कि भाई इससे जेलस हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छा ख्वाब है ना, तो आपने ये अपने भाइयों से बयान नहीं करना। लेकिन अब देखिए सोचने की बात है, हम ये कहते हैं ना हमारे बहन-भाइयों से अच्छा या हमारा कोई वेल विशर नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर कोई अब उन्होंने भी ये कहा ना कि आपने उनको नहीं सुनाना, आपने मुझे सुना दिया, अब मैं इसका आपका वालिद हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है कि कौन किसी बहन-भाई की किसी के साथ बनती है, किसी की किसकी नहीं बनती, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अब आप ना बाकी अपने भाइयों को इसके बारे में ना बताइएगा, ये ना हो कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएँ, क्योंकि शैतान जो है वो किसी के पीछे भी लग जाता है, तो वो आपके भाइयों को आपके खिलाफ उकसा देगा। क्योंकि ख्वाब की ताबीर बहुत वाज़िह थी कि अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त देगा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जो कि बहरहाल ख़ानदान नबूवत में से थे, ऐसे वाज़िह ख्वाब का समझ लेना कुछ मुश्किल भी ना था उनके लिए कि वो इसको समझ ना सकते कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। सितारा 11 भाई हैं और चाँद सूरज माँ-बाप हैं, और ये सब किसी वक़्त में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़मत शान के सामने सर झुकाएँगे। सजदा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको अल्लाह रिस्पेक्ट इतना देगा, जैसे कि हम जब बाद में देखेंगे कि जब वो अज़ीज़े मिस्र हुए, जब अल्लाह ने उनको बादशाहत अता की, अल्लाह ने तो सब लोग उनके आगे सर झुकाने वाले, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले बन के, कि ये जो सजदा कर रहे थे मीन्स कि वो रिस्पेक्ट दे रहे थे उनको, तो रिस्पेक्ट करने वाले बन जाएँगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई एक थे, जिनका नेम था बुन्यामीन। बाकी 10 भाई जो थे, वो सौतेले थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब से पहले ही ये महसूस किया करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बाप की ख़ुसूसी मोहब्बत को देखकर इनके सौतेले भाई दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा उनसे हसद करते थे। और इन्होंने ख़्याल किया कि अगर ये ख्वाब उन्होंने सुन लिया तो शैतानी हसद की आग इनके दिलों को भड़का देगी, और जोशे हसद से इनकी आँखें बंद होना शुरू हो जाएँगी, या फिर वो उनके साथ उनको तकलीफ़ पहुँचाएँगे, अज़ियत देंगे, या इस तरह का कुछ करेंगे। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब भाइयों के सामने बयान करने से मना फरमा दिया। इससे मालूम होता है कि ख्वाब ऐसे शख्स के सामने ना बयान किया जाए, जो कि किसी का तरह से आपका खैर ख़्वाह ना हो, हमदर्द ना हो, या ऐसे शख्स के सामने ताबीर ख्वाब ना बताया जाए, जो ताबीर के बारे में माहिर ना हो। यानी ख्वाब का हर शख्स से बयान करना दुरुस्त नहीं है। और जामिया तिर्मिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत की 40 अज्ज़ा में से एक जुज़ है। और ख्वाब मुअल्लक़ रहता है जब तक किसी से बयान ना किया जाए। जब तक आप किसी से बयान नहीं करते और आपको वो कोई बता नहीं देता उसकी ताबीर, तो वो तब तक मुअल्लक़ रहता है, हवा के अंदर मुअल्लक़ रहता है। तो इसलिए जब बयान कर दिया जाता है, सुनने वाले ने कोई भी उसकी ताबीर बता दी। अगर आप किसी को ख्वाब की बता रहे हैं ना, अगर ख्वाब बहुत अच्छा है, अगर उसकी ताबीर किसी ने आपको बुरी बता दी है, तो वो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है? अगर ख्वाब अच्छा नहीं है, किसी ने आपको बताया कि इसकी ताबीर अच्छी होगी। अब देखिए ये भी डिपेंड करता है। अ, अब देखिए लोग ये समझते हैं ना कि जब आप बारिश देखेंगे, बारिश अच्छी होती है। अगर इसकी भी 2 सूरतें होती हैं। जब आप ख्वाब में बारिश देखते हैं ना कि बारिश हो रही है, अगर आप देखें कि बारिश जस्ट आपके घर के अंदर हो रही है, बाकी पूरे शहर में बारिश नहीं हो रही, तो वो बारिश नुकसानदेह है। लेकिन हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, हम कहते हैं नहीं वो अच्छी है, ठीक है? तो अगर आप देखते हैं कि पूरे शहर में बारिश हो रही है ना, तो वो अच्छी बारिश होती है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। और देखिए अगर हम शादी की बात करते हैं, अगर मैरिड जो है वो शादी देखेगा ख्वाब में, तो उसके लिए वो नुकसानदेह है। हो सकता है कि उसकी डेथ जो है उसके बारे में बताया जा रहा हो सकता है मीन्स कि उसके लिए वो नुकसानदेह है। और अगर अनमैरिड देखता है कि उसकी शादी हो रही है ख्वाब में, तो वो उसके लिए अच्छा है। वो उसके लिए सक्सेस हो सकती है, वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? देखा दोनों ने एक ही ख्वाब है, मैरिड और अनमैरिड ने एक ही ख्वाब देखा है। बारिश देखी है, दोनों ने देखी है, एक ने घर के अंदर देखी है और एक ने पूरे शहर में देखी है, ठीक है? ये फिर डिफरेंट इनके ख्वाब की ताबीर हो जाती हैं, तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए ये तिरमिज़ी शरीफ में है, इसकी जो मैंने आपको अभी बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब जो है नबूवत के 40 अज्ज़ा में से एक जुज़ है, और ख्वाब मुअल्लक़ रहता है जब तक किसी से बयान ना किया जाए।
جب بیان کر دیا گیا تو سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے سوائے اس شخص کے جو عالم ہو، عاقل ہو، یا کم از کم آپ کا دوست اور خیر خواہ ہو، اس کو خواب آپ بیان کر دیں۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس خواب کی کوئی بات تکلیف اور مصیبت والی ہو یا وہ کسی سے بیان نہ کریں۔ روایت حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کسی سے بیان نہ کریں۔ دیکھیے، اور کچھ تعبیر اتنی لیٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، ان کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے تعبیر کا فوراً سے ظاہر ہونا کچھ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اگر کسی سے بیان کر دے تو اس سے کوئی گناہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبی کا چن لے گا تجھے، ربک تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھے، من تعبیل الاحادیث انجام نکالنا باتوں کا، مینس کے خوابوں کی تعبیر بتانا، وَيُتِمُّ اور مکمل کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت، علیک آپ پر، وَعَلَى آلِ یعقوب اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا، علی ابوئی کا تیرے باپ دادا کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ان ربک بے شک تیرا رب، علیم علم والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں جو دلائل موجود ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا رب آپ کو منتخب کر لے گا، چن لے گا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور آپ پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام مکمل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل کر چکا۔ واقعی آپ کا رب بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اور یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں دلائل موجود ہیں جو کہ وہ پوچھ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو وہ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا جو کہ سب ان کے بھائیوں اور گھرانے والوں کو نہیں ملی۔ مینس کے گھر والے ان کے متی ہوں گے، ان کے ماتحت ہوں گے، ان کی بات کو اچھے سے سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس لیے ایک ہدایت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دی کہ اپنا خواب کسی بھائی سے بیان نہیں کرنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام مزید بشارت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رہے، جس کا بیان ان آیات میں کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، جس طرح اللہ نے آپ کو ایسا اچھا خواب دکھایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کو خصوصی قرب بھی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نوازشیں بھی اللہ کی طرف سے ان کو نصیب ہوئیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم دقیقہ مینس کے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، یعنی خواب سن کر اس کے اجزاء کو ذہانت اور فراست سے سمجھ کر اس کی تعبیر کی تہ تک پہنچنے اور اس کے نتائج کو فوراً پرکھ لینے کی سمجھ بھی اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اخروی نعمتوں کے ساتھ اللہ آپ کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت میں بھی حصہ دے گا، شدید سختیوں سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فقط اللہ آپ کو انعامات سے ہی سرفراز نہیں فرمائے گا، بلکہ میری دوسری نسل کو بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو نوازا تھا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اپنا ذکر انکساری کی وجہ سے نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، تو غالباً اس کا کچھ حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے بھی سمجھے ہوں گے، اور اس بات سے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مبارک خواب دکھا دیا، اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے خصائص و حالات یا وحی الہی کے ذریعے سے بھی وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت اور مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اے یوسف، بے شک آپ کا رب بڑا علیم حکیم ہے، یعنی وہ ہر ایک کی مناسبت اور استعداد سے باخبر ہے، اور اپنی حکمت سے اسی کے موافق فیض پہنچاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان بشارتوں کے بعد جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح ان کے واقعات دریافت کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے
قصے اور بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اس قصے کو سن کر اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت کا نقشہ آپ کے دلوں میں جم جانا چاہیے، اور بہت سے دلوں پر یہ نقشہ جم بھی چکا ہے جنہوں نے اس قصے سے نصیحت حاصل کی۔ اس قالو، انہوں نے کہا، لیوسفا، یوسف علیہ السلام سے، انہوں نے کہا لیوسفا، ضرور یوسف، وہ اخوک، اور اس کا بھائی، احبو، زیادہ پیارا ہے، الا ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ہماری نسبت ہمارے باپ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار ہے، ونحن، اور جبکہ ہم، عصبۃ، ایک جماعت ہیں، انا، بے شک، ابانا، ہمارا باپ، لفی ضلال، البتہ غلطی میں ہے، مبین، کھلی، نقتلو، مار ڈالو، یوسف، یوسف علیہ السلام کو، ابھی طرحوہ، یا اسے ڈالاؤ، ارزن، کسی زمین میں، یخل، خالی ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وجہ، منہ، ابیکم، تمہارے باپ کا، وتکون، اور تم ہو جاؤ، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگوں میں سے آپ ہو جاؤ۔ تو اب ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کو شامل کر کے قریباً 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بڑے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ کے بطن سے تھے، اور ان کے وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی ہمشیرہ راحیل سے نکاح کر لیا تھا، سوری، ٹھیک ہے، ان کی جو سسٹر تھی، لیہ کی سسٹر، ان کا نیم راحیل تھا، راحیل سے نکاح کر لیا، اور ان کے بطن سے 2 لڑکے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف ایک بنیامین تھے، باقی 10 سوتیلے بھائی یعنی باپ شریک تھے۔ باقی 10 سوتیلے بھائی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ یہ دونوں اپنے سب سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے ویسے ہی پیرنٹس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ویسے ہی لاڑ پیار زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں چھوٹے تھے تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور ان کی بھی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ علماء مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ اور خصوصی محبت کرنا محض ظاہری حسن کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ آپ خوبصورت بہت ہے نا، بلکہ اس لیے بھی تھا، زیادہ خصوصی محبت اس لیے بھی تھی کہ حسن کے ساتھ ساتھ حسن سیرت، جمال نبوت، اور سچ بولتے تھے، نور فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، عفت بھی ان کے ساتھ شامل کی تھی، اور بہت سارے ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے کمالات اور فضائل دیے تھے جو کسی دوسرے بھائی کو نہیں دیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نور نبوت اور چشمی بصیرت سے ان کے باطنی محاسن کو بھی دیکھتے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی نظر میں زیادہ محبت پائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے نور نبوت سے الہام سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ان کو معلوم بھی ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مستقبل کا نہایت درخشاں ستارہ ہے، اور نبوت کا خاندانی سلسلہ انہی کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام میں نبوت اور صدیقیت کے آثار نمایاں تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ان کی طرف زیادہ مائل تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے والے ہیں۔ تو اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باطنی فضائل و شمائل کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی نظر میں زیادہ محبوب تھے، مگر عملی طور پر حقوق فرزندیت کے اعتبار سے معاملات میں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بالکل یکساں تھے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ سارے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کسی دوسرے بھائی پر زیادہ ترجیح دی ہو یا زیادہ محبت کی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ایکول محبت سے پیش آتے تھے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ان کی اٹیچمنٹ زیادہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب 10 بھائیوں نے یہ دیکھا کہ باپ کی نظر جو ہے
छोटे भाई पे है, वो सबसे छोटा है और इस पर है, तो आपस में कहने लगे कि हमारे वालिद को बनिस्बत हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके केकी भाई बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है और वो हमारे बाप को ज्यादा महबूब है। हालांकि हम 10 हैं और इनसे बड़े हैं, बाप को हर तरह से राहत और आराम पहुंचा सकते हैं और जो तकलीफ पेश आए इसको दूर कर सकते हैं और हर काम के लिए काफी हैं, घर की देखभाल करते हैं, कामकाज की कुव्वत भी रखते हैं। और ये दोनों छोटे बच्चे हैं, नौमरी की वजह से ये ये कुछ काम भी नहीं कर सकते, लिहाजा कायदे के मुताबिक तो मोहब्बत हमसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है। हमारे वालिद को इसका ख्याल करना चाहिए कि हमसे ज्यादा मोहब्बत करनी है। तो उन्होंने आपस में एक मशवरा किया हसद की वजह से। सौतेले भाइयों में रश्क व हसद की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही और आखिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं है कि वालिद की खुसूसी मोहब्बत और तवज्जो को हम अपनी तरफ खींच सके। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अगरचे बाप की नजरों से जब ये दूर हो जाएगा तो फिर हमारा मामला थोड़ा दुरुस्त हो सकता है और मुमकिन है इसी दौरान ये जो है इस तरह से हम करेंगे तो बाप की तवज्जो हमारी तरफ आ जाएगी और इस तरह से हमारे बाप भी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे तरीके से अच्छे सलूक से पेश आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में भी बता दिया, मीन्स कि उनको तब ये ख्वाब आया तो जो उन्होंने अपने वालिद के साथ शेयर किया। तो तब जब उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की, उन्होंने कहा कि हम या तो बनियामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन दोनों को, पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि दोनों को कर देंगे ना, कत्ल कर देंगे या कहीं दूर छोड़ आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, पहले हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके जाएंगे। बनियामीन यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई के मामला मीन्स कि उनको लगता था कि उनको थोड़ी कम मोहब्बत है, इसलिए सबसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा को तमाम करना चाहिए। तो 10 जो भाई थे उन्होंने ये सोचा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब खात्मा हो जाएगा तो यूसुफ के बाद हमारे सब काम ठीक हो जाएंगे और बाप का रवैया भी हमारे साथ पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा और बाप के हम ही मंजूर नजर हो जाएंगे और कत्ल के बाद बाप से हम माजरत करके वैसे ही हो जाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल मत करो, इनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दो ताकि कोई राह चलता हुआ इनको निकाल कर ले जाए। अगर तुम इसे ऐसा करना ही चाहते हो, बाप से दूर करना ही चाहते हो, तो ऐसा करो कि इन्हें किसी अंधेरे कुएं में डाल दो। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون। सबने कहा कि अब्बा इसकी क्या वजह है, यूसुफ के बारे में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम इनके खैर ख्वाह हैं। अरसिलहु माअना गदन यरतअ वयलअब वइन्ना लहु लहाफिजून। आप इनको कल के रोज हमारे साथ भेजिए ताकि ये खाएं पिएं और हम इनकी पूरी हिफाजत रखेंगे। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको ये बात गम में डालती है कि आप इसको ले जाओगे और मैं ये अंदेशा करता हूँ कि इसको कोई भेड़िया खा जाए और तुम इससे बेखबर रहो। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون। वो बोली अगर इनको कोई भेड़िया खा जाए और हम एक जमात की जमात हों तो हम बिल्कुल ही गुजरे होंगे कि हम इनको बचा ना सकें। तो अब उन्होंने एक तो प्लानिंग की हुई थी कि हम प्लानिंग के तहत इनको लेके जाएंगे, तो सब भाइयों ने कहा कि या तो हम इसको कत्ल कर देंगे या फिर हम इनको ना कोई और प्लानिंग करेंगे। तो सबसे जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कत्ल करना तो बहुत सख्त बात है, हमारा मकसद इनको बगैर कत्ल के भी हासिल हो सकता है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप यहाँ से अलग करना चाहते हैं तो आसान सूरत ये भी हो सकती है, इनको किसी बस्ती से दूर किसी गुमनाम कुएं में डाल दिया जाए, जिससे ये गस्ती के कत्ल करने का गुनाह भी वो अपने सर नहीं लेंगे। और ऐसे कुएं में डाल देने के बाद बहुत मुमकिन है कि कोई मुसाफिर इधर से गुजरे और खबर पाकर कुएं से पानी वगैरह लेने जाए, क्योंकि उस टाइम पे पानी लेने के लिए जरिया जो था वो कुएं ही थे। तो उनका कुएं में जब वो देखे तो वहां पे उन्हें पाए और वहां से उन्हें निकाल ले।
सब भाइयों ने ये मशवरा तय कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाएंगे और किसी गैर आबाद कुएं में डाल देंगे। चनाचे इस मशवरे पर इत्तेफाक कर लेने के बाद अपने वालिद को धोखा देने के लिए सब मिलकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अब्बा जी आखिर क्या बात है। मीन्स कि उन्होंने कहा अपने वालिद साहब से कि हमें या हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाने दीजिए। ये छोटे थे वो, तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया कि मैं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि अब्बा जी क्या बात है, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमें आप इतने हम पे अनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? आप सिक्योर क्यों नहीं हो रहे कि हम इनको ले जाएंगे, इनको बाहिफाजत वापस ले आएंगे? आप इस तरह से ना कीजिए। तो हम तो इसके भाई हैं, इसके खैर खां हैं, हमसे ज्यादा इनकी खैर खाई कौन कर सकता है? इनकी इन बातों से मालूम होता था कि शायद वो पहले भी इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट कर चुके थे, मगर यकूब अलैहिस्सलाम का दिल इनके साथ भेजने पर कभी भी मुतमिन नहीं हुआ था। अलगर सब भाइयों ने मिलकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दीजिए। आखिर हम घर भर की बकरियां चराते हैं, जानवर चराते हैं, दिन भर जंगल की ताजा हवा खाते हैं। आप हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से ओझल ही नहीं होने देते, और फिर इसे चलने फिरने कूदने का कोई मौका ही नहीं देते। बच्चों को रोज नहीं तो कभी कभी तो आजादी के लिए खेलना कूदना चाहिए। मीन्स किस तरह की उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने कहा कि यूसुफ इस्लाम खाली घर में पड़े पड़े बेकार हो जाते हैं, मुनासिब है कि आप इसको हमारे साथ जंगल में भेज दें। वहां के ये जंगल के ताजा फल खाएंगे, वहां खूब खेलेंगे, और इनकी इस तरह से सेहत भी अच्छी हो जाएगी। कर्ज यकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की और इत्मीनान दिलाया कि हम बराबर इसकी हिफाजत करेंगे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी इसरार के जवाब में फरमाया कि यूसुफ की जुदाई और तुम्हारे साथ जाने का तसव्वुर मुझे गमगीन बनाए दे रहा है, और इस पर ये खौफ भी आ रहा है कि यूसुफ बच्चा है। तुम्हारी बेखबरी और गफलत में कहीं कोई भेड़िया या कोई दरिंदा इसको फाड़ ना खाए। यकूब अलैहिस्सलाम को भेड़िए का खतरा या तो इस वजह से हुआ था कि कनान में भेड़ियों की कसरत थी, कनान में रहा करते थे, वहां पे भेड़ियों की कसरत थी। या इस वजह से कि इन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और यूसुफ इसके दामन में है। अचानक 10 भेड़ों ने इन पर हमला किया, इन्हें घेर लिया। भेड़ियों ने इनको घेर लिया, उन पर हमला कर दिया, मगर एक भेड़िए ने मुदाफत करके इन्हें छुड़ा दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह से जाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे, और जिस भेड़िए ने मुदाफत करके इनको हलाकत से वो बचाया था, वो सबसे बड़ा भाई था, जिसने कहा था कि आप कत्ल ना कीजिए, बल्कि आप इस तरह से कीजिए कि इन्हें किसी कुएं में डाल देते हैं। तो फिर उन्होंने कुएं में डाल दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, मनकूल है कि यकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की बिना पर खुद इन भाइयों से भी खतरा था। मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि इस जंगल में भेड़िए भी कसरत से थे, और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इसी बात को उन्होंने इस तरह से लिया कि शायद उनके जहन में ये उज़र आया कि ये हो सकता है इनको छोड़ दें और भेड़िया उनको ले जाए। चनांचे इस वक्त ये बात उन्हें जवाब दिया कि अब्बा आपने क्या फिक्र कर रहे हैं, जब हम इतनी बड़ी और ताकतवर जमात इनके साथ मौजूद हैं, हम 10 लोग इनके साथ मौजूद हैं, अगर भेड़िया खा जाएगा तो हम बिल्कुल ये समझेंगे कि हम गए गुजरे हैं और हमसे बढ़कर कोई खसारे वाला नहीं होगा। हम 10 सेहतमंद भाई हैं, हमारी आंखों के सामने वो एक बच्चे को लेके नहीं जा सकते, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون। तो जब उनको लेके सबने पुख्ता अज़म कर लिया कि उनको किसी अंधेरे कुएं में डाल देंगे, और हमने इनके पास वही भेजी कि तुम इन लोगों को ये बात जतलाओ कि वो अब तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और वो लोग अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए पहुंचे। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फअकलहु الذئब वमा अंत बिमुमिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। कहने लगे अब्बा हम सब तो आपस में दौड़ने में लग गए, और यूसुफ को हमने अपनी चीज चीजों के पास छोड़ दिया, बस एक भेड़िया उनको खा गया, और आप तो हमारा यकीन नहीं करेंगे चाहे हम कैसे ही सच्चे हों। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए थे। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फस्सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो मैं सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा, और जो बातें आप बनाते हैं उनमें अल्लाह ही मेरी मदद फरमाएगा।
अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में लिखा है कि बाप की आंखों से हटते ही इन सब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना शुरू कर दी, इज़ाएं देना शुरू कर दी, मारते पीटते, बुरा भला कहते इसी कुएं के पास पहुंचे और हाथ पांव रस्सी से जकड़कर कुएं में गिराना चाहा। आप एक एक के दामन से चिमटते और एक एक से रहम की दरख्वास्त करते, लेकिन हर एक झिड़क देता और धक्का देकर मार पीट कर हटा देता था। मायूस होकर सबने जब सबसे मायूस हो गए, सबने मिलकर मजबूत इनको बांध दिया और कुएं में लटका दिया। आपने कुएं का किनारा हाथ से थाम लिया, लेकिन भाइयों ने उंगलियों पर मार मार कर इसे भी हाथ से छुड़ा दिया। कुएं में आधी दूर आप पहुंचे होंगे कि उन्होंने रस्सी काट दी। आप तह में जा गिरे। कुएं के दरमियान एक पत्थर था जिस पर आप खड़े हो गए। एन इस मुसीबत, तंगी और सख्ती के वक्त अल्लाह ताला ने आपकी जानिब वही की कि आपका दिल मुतमईन हो जाए और आप सब्र सहारे से काम लें और इंजाम का आपको इल्म हो जाए। और ये वही जो थी बतरीके इलाही इल्हाम थी, अल्लाह की तरफ से उनको इल्हाम हो रहा था या फरिश्ता के जरिए। इसकी डिटेल कुरान पाक में नहीं है, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जब फेंके गए थे तो उनके लिए एक बहश्ती लिबास आया था, जन्नत से एक लिबास आया था। ये लिबास तबरकात के साथ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में ये डाल दिया था। भाइयों ने कुएं में डालते वक्त आपके कुर्ते को उतार लिया, तो इस खून से आलूदा करके बाप को दिखाएंगे। इस तरह से नंगे बदन को आप कुएं में डाला तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक कुर्ते का थोड़ा सा पीस था ना, जो गले में उनके डाला हुआ था, वो आपने गले में से खोलकर पहनाया और उनको बहुत सारी बशारतें सुनाई कि आपके भाई मजबूर और मुती होके आपके पास आएंगे। और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीजें जिनसे उनके साथ डिस्कस की और ये भी बताया कि अल्लाह ताला, लेकिन तब तो वो बहुत छोटे थे। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि वो तब बहुत छोटे थे और ये तब बस अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई थी और उनको कुएं में रख लिया था। वल्लाहु आलम। फिर लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग के उसी टाइम पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उनको बता दिया था कि किस तरह से अल्लाह ताला उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाज़ेगा, अल्लाह ताला उनको बादशाहत से नवाज़ेगा, वल्लाहु अअलम। तो अलग़र्ज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ में डालकर अब सब भाई घर की तरफ वापसी का जब उन्होंने इरादा किया, गोया घर पहुँचते-पहुँचते अँधेरा हो गया। या जानबूझकर वो अँधेरे से आए कि दिन के उजाले में बाप को मुँह दिखाना ज़्यादा मुश्किल था और रात की तारीकी में उनकी संगदिल और झूठी आहो-बका किसी हद तक उनकी पर्दादारी कर सकती थी। जब अंधेरा छा गया तो इन भाइयों ने घर पहुँचकर रोना-धोना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोने की आवाज़ सुनकर घबरा कर बाहर निकले और पूछे कि क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो कहने लगे कि अब्बाजान, क्या कहीं जंगल में जाकर जी चाहा, हम लोगों का जी चाह रहा था कि हम जंगल में कहीं जाकर भागें, दौड़ें, हम दौड़ लगाएँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बिठा दिया था और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हमने भागना शुरू कर दिया। बस जैसे ही हम इनकी आँख से ओझल हुए, भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आ दबोचा। उसी मौका पर हमें ज़रा भी नहीं पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया फ़ौरन शिकार करके पहुँच जाएगा और भेड़िए ने शिकार कर लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को और वो शिकार करके ले गया। आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में पहले से ही हमारी तरफ से बदगुमान हैं। हम लाख सच्चे हों, आप हमारा यकीन नहीं करेंगे। ये कहते जाते थे और झूठ-मूठ रोते जाते थे। कम से कम रोने की आवाज़ तो उन्होंने बना रखी थी। अगर अंधेरा ना होता तो इनका चेहरा भी बता देता कि ये सब बनावटी बातें हैं। फिर भी कहानी साफ घड़ी हुई मालूम होती थी और ये एक ढोंग रचाया हुआ मालूम होता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो कुएँ में डालते वक़्त इनके बदन से उतार ली थी, किसी जानवर को मारकर उन्होंने खून से भर ली और वो झूठा खून आलूद कुर्ता पेश करके कहने लगे कि भेड़िए के ज़ख्मी करने से ये कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद हो गया था। नादान ये ना समझे कि भेड़िया पकड़ता तो सबसे पहले कमीज़ फटती। इससे ये क्या माने कि बदन तो ज़ख्मी और लहू-लहान हो गया, लेकिन कमीज़ पर ज़रा भी आँच नहीं और वो बिल्कुल सही रही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि कमीज़ तो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है और सिर्फ़ उसके ऊपर खून लगा हुआ है। और बाज़ तफासीर में ये भी है कि याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वो भेड़िया वाक़ई बहुत अक्ल वाला था, हलीम व मतीन था, जो यूसुफ को तो ले गया और खून आलूद कुर्ता नहायत एहतियात से सही सालम उतार कर रख गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने साफ तौर पर समझ लिया कि ये सब इनकी साजिश है, वो अपने दिलों से तराशी हुई बातें हैं। बहरहाल फरमाया कि मैं सब्र इख्तियार करता हूँ, जिसमें न किसी गैर के सामने शिकवा होगा, न तुमसे इंतकाम की कोशिश होगी। मैं सिर्फ अपने रब से
दुआ करता हूँ इस पर वो मेरी मदद फरमाएगा और जो बातें आप कर रहे हैं अल्लाह ताला ये भी सारी आश्कार कर देगा और सलामती के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा मिलना नसीब फरमाएगा। मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है, मालूम होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया हो कि जिस इम्तिहान में वो मुब्तला किए गए हैं वो पूरा होकर रहेगा और एक मुद्दत के बाद इससे निजात मिलेगी। इन्हें इस किस्सा के ज़रिए से ये सबक सिखाना था अल्लाह ताला की तरफ से, इस किस्म का सलूक करने वाले आखिर ज़लील और ख़ार होते हैं और जो सब्र करते हैं, जो ज़ुल्म और सितम सहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करता है, इन्हें इज़्ज़त और शौकत अता फरमाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें सही से दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमारा शुमार अपने शुक्रगुज़ार बंदों में फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।